चर्चा के दौरान राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनती है तो वो उस कानून को बदल देगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान करता है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, पहले उनकी बाइट सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये पिछले महीने यानी दिसंबर का महीना और विंटर सेशन चल रहा था, विपक्ष चाह रहा था कि चुनाव सुधार पे और खासकर जो एसआईआर है उस पे चर्चा हो। एसआईआर का नाम न देकर चुनाव सुधार का नाम दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई, बहस हुई और इसी बहस के दौरान राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में साफ साफ जो बातें कही थी, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। इंग्लिश में उन्होंने पूरे भाषण को दिया था और उसके बाद आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा था और आज उस कथन की जरूरत यहां सुनने की क्यों पड़ रही है, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। सुनिए जरा। They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions and there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Yes. Let our experts go and see what is inside the EVM. Yes. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the... तो सुन लिया आपने, वी आर गोइंग टू चेंज इट रेट्रोएक्टिवली। और यहां पर यानी मैं निर्वाचन आयुक्तों यानी चुनाव आयुक्तों से कहना चाहता हूं कि वो सोचते होंगे कि ये कानून उन्हें बचाता है, लेकिन चिंता ना करें, हम सत्ता में आने पर कानून बदलेंगे और वो भी पिछली तारीख से रेट्रोएक्टिवली।
ऐसा करेंगे और आपको ढूंढ निकालेंगे। ये बात यहां राहुल गांधी ने कही। जो भी आप सुन रहे थे वहां राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर अपनी तमाम बातें रखी, इंग्लिश में कह रहे थे, आप लगातार सुन रहे थे, समझ रहे थे। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जिस कानून को बदलने की बात की थी और अभी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023। ये 2023 का एक एक्ट है, अधिनियम है, जो अब कानून का रूप ले चुका है। और उस कानून का नाम दोबारा आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आगे इसका जिक्र अभी आएगा, इसलिए कह रहा हूं। और जिस कानून का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे उसी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023। यह कानून पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा से पारित होने के बाद 29 दिसंबर, जी हां 29 दिसंबर 2023, 29 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू हुआ था इस देश में। इसने चुनाव आयोग, जिसमें चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 की जगह ली थी। 1991 में जो कानून था उस कानून को खत्म कर, हटाकर और यह नया कानून लाया गया। और चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें क्या होंगी, उनका कार्य संचालन कैसे होगा, उसकी जगह ली थी। और याद कीजिए, यह वो समय था जब लगभग 150 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर कर दिया गया था और इस कानून को पारित किया गया था। इस कानून की धारा 16 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान की गई है। इसके मुताबिक वर्तमान या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों यानी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अभी ज्ञानेश बाबू हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, और चुनाव आयुक्तों यानी इलेक्शन कमिश्नर जो दो उनके आजू बाजू में बैठे रहते हैं, इन दोनों द्वारा अपनी सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कार्य या वक्तव्य के लिए किसी भी अदालत में दीवानी या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस नियम के पीछे यह तर्क दिया गया था कि इससे चुनाव आयुक्त बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। बहुत बढ़िया। कानून में तो बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं दोस्तों, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं दिख रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर पा रहा है, बल्कि चारों तरफ से पक्षपात की खबरें आ रही हैं। एसआईआर में अमर्त्य सेन, भारत रत्न अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश जैसों को चुनाव आयोग में पेश होने का नोटिस भेजा जा रहा है। आज उधर पश्चिम बंगाल में जादवपुर विश्वविद्यालय, आप जानते हैं, जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति चिरंजीव भट्टाचार्य को भी ऐसा ही नोटिस चला गया है। ऐसी गलतियां, और ये गलतियां हो रही हैं या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, इस पर बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। आज तो एक अखबार ने उत्तर प्रदेश के एसआईआर में नाम और पतों की गड़बड़ी पर खबर छापी है, जिसे शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ लिखा है उसको आपके सामने ला रहा हूं। संजय सिंह यहां कह रहे हैं, मोदी, योगी, ज्ञानेश, इन तीनों का नाम लेते हुए, मोदी, योगी, ज्ञानेश ने यूपी के साथ कर दिया बड़ा खेल। एसआईआर के नाम पर 4 करोड़ 46 लाख मतदाता उड़ा दिए। 4 करोड़ 46 लाख, 4 करोड़ एंड 46 लाख वोटर्स उड़ा दिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी ग्रामीण दोनों की सूची 17 करोड़ 1 लाख मतदाता दर्ज किए। दोनों की सूची अगर शहरी और ग्रामीण का देखा जाए तो, जबकि मोदी, योगी, ज्ञानेश ने एसआईआर के बाद इसको घटाकर कुल मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 55 लाख कर दी। कौन सच है और कौन झूठ? यह है एसआईआर का काला सच। एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर दर्ज, एक ही पते पर मिले कई परिवारों के नाम। शर्मा के घर शबनम का नाम कैसे? शर्मा के घर शबनम और पंडित के घर खान तो भारतीय एकता की मिसाल बन सकती है, लेकिन असल में यह चुनाव आयोग की गड़बड़ी की मिसाल है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग अपनी गलती नहीं मानेगा। ये अखबार में, ये अमर उजाला अखबार ने इसको छापा है, एसआईआर शर्मा के घर शबनम, इसी हेडिंग के साथ। देखिए, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कहां? तो उत्तर प्रदेश में। शर्मा के घर शबनम, एक ही पते पर मिले कई परिवारों के नाम, एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर।
ये यहां साफ साफ इधर पश्चिम बंगाल आते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भी अब इसी बात की लड़ाई है कि गलत कौन है। ईडी ने आईपैक, आप जानते हैं आईपैक के दफ्तर पर प्रतीक जैन जो इसके आज की तारीख में कर्ता धर्ता हैं, दोनों के घर, प्रतीक जैन के घर पर और आईपैक के दफ्तर पर रेड की थी। तो ममता बनर्जी ने भी प्रतीक जैन के घर पहुंचकर कुछ जरूरी दस्तावेज उठा लिए थे। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और टीएमसी की मुखिया, उनका आरोप था कि ईडी के जरिए बीजेपी उनकी रणनीति चुरा रही है, चुनावी रणनीति चुरा रही है। और लेकिन अब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय कह लीजिए, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दरखास्त दी है। लेकिन जब यह लेकर निकली थी, ममता बनर्जी ने क्या कहा था, एक छोटी सी बाइट सुन लीजिए पहले, फिर इधर क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे हम। तो यहां ममता बनर्जी जब जो हरे रंग के इस फाइल को लेकर निकली, इस फाइल के अलावा इनके पास एक हार्ड डिस्क भी है, इसको लेकर निकली थी, तो इन्होंने जो अपनी बातें रखी थी, जो चुनौती पेश की थी, वो सब कुछ अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन साथ साथ इसके बाद अब ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी पहुंच गई वहां कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई थी। लेकिन जिस दिन सुनवाई होनी थी 12 तारीख को, 12 तो आज है लेकिन सुनवाई 9 तारीख को शायद थी या 10 तारीख को, 9 को थी या 8 को थी सुनवाई। उस दिन जिस दिन सुनवाई थी उस दिन वहां पहले सुनिए यहां क्या बोल रही है ममता बनर्जी। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal. यहां ममता बनर्जी का आरोप था कि ईडी के जरिए बीजेपी उनकी रणनीति यानी सियासी रणनीति को चुरा रही है। लेकिन अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी है। ईडी का कहना है कि रेड सिर्फ अपराध के जांच पड़ताल के लिए की गई थी, न कि किसी राजनीतिक दल को किसी गतिविधि से संबंधित थी। ये कि वो कौन सी रणनीति बना रही है, कौन सी गतिविधि यहां पर लेके आने वाली है चुनाव में। ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून अपने हाथ में लेने का एक पैटर्न बना लिया है और जब भी किसी जांच में उन्हें उनके मंत्रियों, पार्टी कार्यकर्ताओं या उनसे जुड़े अफसरों के खिलाफ कुछ सबूत मिलने की संभावना होती है, तब वे राज्य की पुलिस का दुरुपयोग करती हैं। ईडी ने जो याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका में क्या कहा है अब आपके सामने रख रहा हूं। याचिका में ईडी ने कहा है कि इन लोगों ने जांच एजेंसी के अफसरों को डराया, धमकाया और उनसे ऐसी फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक सबूत छीन लिए जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम आपराधिक सबूत थे। ईडी ने यहां कहा है कि हमने जो सबूत जुटाए थे उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था और वे पूरी तरह से जांच के मामले से संबंधित अपराध तक ही सीमित थे। ईडी ने यहां यह भी कहा है कि जब जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों को मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त ने छीन लिया और इसे मीडिया के सामने तमाशा बना दिया, तो इससे संविधान और कानून के शासन का अपमान हुआ, जिससे संवैधानिक सिद्धांतों को नुकसान हुआ, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा रक्षा की है। ईडी ने यह भी कहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं, वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और अन्य पुलिस अफसर गंभीर अपराधों में शामिल हैं। ये जितने भी हैं सब गंभीर अपराधों में शामिल हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करना बेकार ही होगा, क्योंकि स्थानीय पुलिस सही ढंग से जांच नहीं करेगी और मुख्यमंत्री और सीनियर पुलिस अफसरों को बचाने के लिए लापरवाह ढंग से जांच करेगी। यह बात यहां ईडी ने कही है, यानी हमको अब कहीं और एफआईआर दिल्ली में
या कहीं और एफआईआर कराने की अनुमति दी जाए, यह सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। इस दलील से साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि ईडी खुद को पूरी तरह बेचारा दिखा रही है कि ममता बनर्जी ने उसके साथ बड़ा अन्याय किया है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी की तरफ से पहले ही कैविएट दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करने का आदेश देता है। लेकिन इससे इतना साफ है कि फैसला जो भी आए, बीजेपी तकलीफ में रहेगी। अगर ममता बनर्जी पर कार्रवाई होती है तो वो इसे चुनाव में भुना सकती हैं, और अगर नहीं होती है तो फिर ये ईडी यानी बीजेपी की बड़ी हार होगी। यहां दोनों तरफ से बीजेपी फंसी हुई है, और इन सबके बीच खबर यही है कि आज इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को और ममता बनर्जी को और इधर केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को नोटिस भेज दिया है। अब आगे नोटिस का जवाब आएगा, इस पर सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि 19 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि अब मोदी और बीजेपी के हाथों से बाजी निकलती जा रही है। क्या कभी डमरू बजाकर तो कभी पतंग उड़ाकर। जी हां, आज नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग उड़ाने में साथ ले रहे थे, उनका साथ दे नहीं रहे थे, बल्कि वो साथ ले रहे थे जर्मन चांसलर का। ये तस्वीर देख लीजिए। चलते चलते मतलब आगे की कार्रवाई जो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे उससे पहले जरा पतंगबाजी भी देख लीजिए। कल डमरू बजा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, आज पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, और साथ में खड़े हैं जर्मन चांसलर। जगह है अहमदाबाद। तो क्या कभी डमरू बजाकर तो कभी पतंग उड़ाकर मोदी चुनाव में सामने जो खड़ी है चुनौतियां, उससे बच पाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट में फंसे चुनाव आयोग और ईडी, ये दोनों कैसे फंस गए हैं, और मोदी के कैसे हाथ से निकलती जा रही बाजी, इसकी चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए, एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ चुनाव आयोग में, और ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला मामला, लोक प्रहरी का मामला जो है, वो उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई, नोटिस जारी कर दिया गया है, और दूसरी तरफ ईडी का मामला देख ही रहे हैं। पहले चुनाव आयोग की बात करते हैं, फिर ईडी पे चलते हैं। चुनाव आयोग, उसमें भी जो ज्ञानेश बाबू जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उसी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है कि यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही होगा? ऐसा संभव होगा क्या? कि बहुत ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से नहीं करना चाहिए। अभी से एक आध बार और सुनवाई हो जाए, कुछ प्रवचन हम लोग सुन लें असंदी के, उसके बाद कुछ दिशा तय होगी कि वहां से कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है, खास तौर से राहुल गांधी के उस भाषण के बाद जो उन्होंने सदन में दिया, उसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव से किसी कानून का लागू होना। राहुल गांधी अंग्रेजी में बोल रहे थे, हमारे दर्शकों के लिए बता दें, यानी जब भी वो कानून बनेगा लेकिन वो प्रभावी रहेगा पिछली तारीखों से। जी, यानी अगर राजीव कुमार या ज्ञानेश गुप्ता जी ये सोच रहे हों कि भविष्य में कोई नया कानून बनेगा तो उस तारीख के बाद जो पदाधिकारी होंगे, पद पर होंगे लोग, उन पर लागू होगा, ऐसा नहीं है राहुल गांधी के मुताबिक। हम नहीं जानते कि राहुल गांधी कब सत्ता में होंगे, कब ये संविधान संशोधन ला पाएंगे, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की चिंताएं वाजिब हैं। हमारी इस संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। ऐसा कानूनी संरक्षण तो, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी तो देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं मिली हुई है। हमारे देश में प्रधानमंत्रियों के खिलाफ मुकदमे चल चुके हैं, पेशी पर पीवी नरसिंह राव जा चुके हैं। तो चुनाव आयुक्तों में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, ये कौन से राम के रचे लोग हैं जिनको मोदी सरकार अपने से भी ज्यादा सुरक्षा देना चाहती है? यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने क्रियाकलापों के लिए आज भी कानून के दायरे में हैं।
लेकिन देश का मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सहयोगी आयुक्त किसी भी चुनाव के कानून के दायरे में नहीं है। ऐसा क्या है? इसलिए जब ये मामला सबसे बड़ी अदालत में गया, लोक प्रहरी ने इसके लिए आवाज लगाई है, तो सुप्रीम कोर्ट को जरूर सोचना चाहिए। हमारे देश में इतना जरूर है कि जो जुडिशियल सिक्योरिटी एक्ट है, न्यायिक संरक्षा कानून है, उसमें अदालतों को, न्यायाधीशों को ये अधिकार है, ये संरक्षण है, अधिकार नहीं, क्षमा कीजिए, संरक्षण मिला हुआ है कि अगर हाईकोर्ट का कोई जज किसी मामले में किसी आरोपी को फांसी की सजा दे दे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो बरी हो जाए, तो इस गलत फैसले के आधार पर न्यायाधीश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कानूनन वो उसे सुरक्षा मिली हुई है, इतना समझ में आता है। लेकिन चुनाव आयुक्तों को ये संरक्षण, ये सुरक्षा क्यों मिली हुई है? अब इसमें जब नोटिस जारी हो चुके हैं, उसके बाद सरकार क्या जवाब देती है, चुनाव आयोग क्या कहता है, इसके बाद सामने आएगा कि असल मंशा क्या है। मंशा वही है जो 140 सांसदों को निलंबित करके इस कानून को पारित करते समय थी। नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनका जो पूरा काकस है, वो चुनाव आयोग को अपनी बांदी बनाकर, अपनी चेरी बनाकर, अपने खूंटे से बंधा हुआ बैल बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए उन्हें ऐसी संरक्षा, सुरक्षा दे दी है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो चाहे वो कर सके, जो चाहे वो चुनाव आयोग से करवा सके, और वही हो रहा है। इसमें समानांतर विषय है जिस पर एसआईआर पर आप बात कर रहे हैं। एडमिरल अरुण प्रकाश की बात आपने कही, लगातार वे एक्स पर अपना पक्ष रख रहे हैं। 18 किलोमीटर दूर दो जगह हाजिरी लगाने के लिए उन्हें नोटिस मिले हैं। 82 साल के हैं वे, उनकी पत्नी शायद 78 साल की हैं जी। तो खुद गोवा के ही एक 82 साल के हैं खुद जी, 83 साल के हैं। गोवा के ही भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, वे भी सेना के भूतपूर्व अधिकारी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनको भी नोटिस मिला है एडमिरल अरुण प्रकाश से पहले। तो ये जो घालमेल चल रहा है चुनाव के नाम पर, मतदाता सूचियों के नाम पर, उनके पुनरीक्षण के नाम पर, ये दोनों विषय ऐसे हैं। चुनाव अधिकारों, आयुक्तों को संरक्षा, सुरक्षा, संवैधानिक उनको जो कवच मिला हुआ है, कवच कुंडल जैसे मिले उन्हें, वो और एसआईआर की गड़बड़ियां, इन दोनों पर सुप्रीम कोर्ट को जरूर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यासपीठ की तरह भागवत कथा जैसे प्रवचन सुना दें चीफ जस्टिस और उनकी पीठ, और उसके बाद हो कुछ नहीं। एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, वहां पे कितने मतदाता कम हो गए, तो मैं भारत के सभी राजनेताओं से विनती करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अपने भाषणों में 140 करोड़ लोगों के देश का जिक्र करना बंद कर दें। कम से कम 20 करोड़ लोग इन 10-11 राज्यों में कम हो जाने वाले हैं, तो भविष्य में जब भाषण दें तो कम 120 करोड़ कहा करें, 140 करोड़ लोग और उनका देश कहना बंद कर दें। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसे संजय सिंह ने यहाँ ट्वीट किया था और जो आपके सामने रखा भी, और ये ट्वीट अमर उजाला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने किया है, जिसमें साफ साफ उनका कहना है कि अगर शर्मा के घर में शबनम और कहीं, और ये जो खबर है जरा ऊपर हेडिंग जो इनकी है वो लेके आएंगे तो समझ में आ जाएगा। और इससे ये शर्मा के घर शबनम, और ये भी मज़ेदार है कि अगर ग्रामीण अंचल में, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो एसआईआर करवाया गया और जो शहरी में करवाया गया, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 17 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। तो 4.5 करोड़ मतदाता, 4 करोड़ 71 लाख मतदाता कहाँ चले गए? यही सवाल यहाँ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूछ रहे हैं। और वो अपनी तरफ से नहीं पूछ रहे हैं, वो इन खबरों के दम पर पूछ रहे हैं।
और खबरें यहां बहुत ही पुष्ट खबरें इसलिए कही जा सकती हैं क्योंकि एक्सक्लूसिव बहुत ही अलग अलग जगहों से ये खबरें जुटाई गई हैं। और खबरें कैसे जुटाई जाती हैं ये हम जितने हम लोग यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी आधा जीवन इसी में निकाल चुके इन्हीं खबरों को जुटाने में। आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए यहां एसआईआर से पहले देखिए चुनाव आयोग की बात और चुनाव आयोग के खिलाफ लोक प्रहरी की याचिका का स्वीकार करना, यह बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि उस कानून को, जो कानून बन गया 29 दिसंबर 2023 को जो कानून बना, उस कानून को चुनौती देने वाली याचिका है वो, और उसमें नोटिस जारी हो गया है। लेकिन एक और याचिका पहले से है सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के पास, आपको याद होगा, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो जूरी है उसके लिए भी, उसके खिलाफ भी याचिका लगाई गई है, जिसमें से सीजेआई को हटाया गया है, जो अभी भी वहां पड़ी हुई है याचिका। और अब इस याचिका के आने के बाद इसको किस ढंग से देखा जाए? ठीक है, सही कहा डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कि यहां हमको ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ये तो अभी याचिका आई है सुप्रीम कोर्ट में, नोटिस जारी हुआ है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सवाल यह है कि याचिका को स्वीकार किया गया है, और याचिका स्वीकार करना मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिस पर सुनवाई होनी चाहिए, जवाब तलब होना चाहिए। उस लिहाज से इसको कैसे देखा जाए? हम लोगों को समझनी ये चाहिए जी कि आखिर ऐसा क्या है कि चुनाव आयोग के ऊपर जब हमला होता है तो सरकार परेशान होती है, बीजेपी बयान देती है। उसका मतलब साफ है कि वो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का मामला है। अब इस अमेंडमेंट की बात अब जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें 3 मुख्य तौर पे परिवर्तन किए गए, और तीनों परिवर्तन बड़े चौंकाने वाले हैं। एक आपने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके पैनल से हटा दिया गया, तो वहां पे इफेक्टिवली सरकार के 2 लोग और एक नेता प्रतिपक्ष है। जाहिर सी बात है कि सरकार जिसको चाहेगी बना देगी 2-1 की मेजॉरिटी से, और वो हमेशा होगी। दूसरा जो परिवर्तन आया वो और चौंकाने वाला है, जिसकी चर्चा कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर तनख्वाह मिलती थी, ये प्रावधान था पिछले कानून में। 1991 का जो कानून था उसमें ये प्रावधान था कि चुनाव आयुक्तों की तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी। अब जो है कर दिया गया कि वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होगी। अब फर्क इसमें जरा समझने वाला है। फर्क क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह संविधान से तय होती है, भारत के संविधान से तय होती है। सेक्रेटरी की तनख्वाह सरकार से आती है। और एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का अगर रिलेशन आप देखें तो एम्प्लॉय कौन होता है? जहां से उसकी तनख्वाह आती है जी। तो इफेक्टिवली वो सरकार के कर्मचारी हो गए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। इसको भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए कि संविधान के तहत उनकी तनख्वाह अब नहीं है, उनकी तनख्वाह सरकार तय कर रही है। तो तीसरी बात कि उनके खिलाफ मुकदमा, अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने बता दिया, संविधान के आर्टिकल 361 में केवल राष्ट्रपति और गवर्नर को ही लीगल इम्यूनिटी है। जो कानून की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है कार्यकाल के दौरान, वो केवल गवर्नर और राष्ट्रपति को रखा गया है। लेकिन वो भी कार्यकाल के दौरान है, वो भी कार्यकाल, लेकिन इनको आजीवन है। आप देखिए ना कि हमने सत्यपाल मलिक साहब के घर में कितनी बार सीबीआई चली गई, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई जब तक वो जीवित थे, तो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। तो ये इफेक्टिवली जो है तो साहब ने सरकार को, अपने इलेक्शन कमीशन को सरकार ने कब्जे में कर लिया। अब एसआईआर की प्रक्रिया को आप देखिए। एसआईआर की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने की देर है, लेकिन ये प्रक्रिया इलेक्शन का डिजायर्ड आउटकम के लिए है।
बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए एसआईआर का हो रहा, बिहार में हम देख चुके हैं। यही यूपी में होगा, यही बंगाल में होगा, अगर उसको रोका नहीं गया या उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए गए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बूथ वाइज पूरा एडजस्टमेंट वोटरों का हो रहा है। अखिलेश यादव ने अभी आरोप लगाए थे जी। उत्तर प्रदेश को लेकर, वो बूथ लेवल पे हो रहा है। तो बड़ी संख्या तो आती है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इतने लोग कट गए, 4.5 करोड़ लोग कट गए उत्तर प्रदेश में, इतने लोग डेड पाए गए, इतनी महिलाएं को नाम कट गए, इतने लोग जो हैं वो जिनको डेड बताया गया वो जीवित हैं। लेकिन इसका रिलेशनशिप बीजेपी के चुनाव जीतने से स्टैब्लिश नहीं हो रहा अभी। वो भी होगा आगे आने वाले वक्त में, वो भी होगा कि बिहार में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश और बंगाल में क्या हुआ है, किन बूथों में नाम कटे हैं, किन बूथों में नाम जोड़े गए हैं, और किसके नाम कटे हैं, किसके नाम जोड़े गए हैं, उन बूथों पर बीजेपी की हार जीत की संख्या क्या थी। बेसिकली आप जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं इस चुनाव आयोग के जरिए कि हमको चुनाव में शिकस्त ना खानी पड़े, 5,000 10,000 वोट का मार्जिन हमारे पास रहे। वही बिहार में हुआ। अब इसकी गहन तरीके से जांच होगी तो सामने आ जाएगा। तो इलेक्शन, और तीसरी एक बात देखिए, जब भी ईवीएम खराब पाई जाती है तो उसमें से कमल का फूल ही क्यों निकलता है, कभी साइकिल क्यों नहीं निकलती। कोई भी खराब ईवीएम से खबरें आती बीच बीच में, चुनाव होते हैं कि ईवीएम की टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग में जो है वो समाजवादी पार्टी का बटन दबाया गया लेकिन कमल का निकला। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि कमल का बटन दबाया जाए और समाजवादी पार्टी का निकल जाए या कांग्रेस का सिंबल निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होता ईवीएम के साथ। तो खराब ईवीएम कमल का फूल ही क्यों निकालती है। और चुनाव आयोग सिर्फ उन्हीं को नोटिस क्यों दे रहा है जो कि बीजेपी के समर्थक नहीं माने जाते, चाहे वो अमर्त्य सेन हो, चाहे वो एडमिरल अरुण प्रकाश हो। क्या ऐसे कोई पब्लिक फिगर, बुद्धिजीवी जिनको नोटिस मिला, एक अपवाद बताया गोवा का, लेकिन उसके अलावा बंगाल में कि जो बीजेपी के समर्थक हो उनका नाम जो है चुनाव आयोग ने उनको कहा हो कि आओ अपना पक्ष रखिए। जी। तो इससे दिखाई देता है कि एक बीजेपी के साथ एक पार्टनर के तौर पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से काम किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, वो उसको एक आंदोलन के तौर पे ममता बनर्जी ने खड़ा किया है, उसका उनको जो है सबक वहां पे मिलेगा। एक आखिरी बात, ईडी बंगाल की पुलिस पे आरोप लगा रही है। तो आप ये देखिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है तो वो भूपेश बघेल और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर करते हैं या कार्रवाई करते हैं, रेड मारते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। राजस्थान में चुनाव होता है तो वो गहलोत के खिलाफ पुराना कोई मामला उठा लाते हैं, उनके बेटे को के खिलाफ एक्शन होता है। यानी जहां चुनाव होता है वहां आप जाते हैं। कर्नाटक में चुनाव हुआ तो आप डीके शिव कुमार के पास चले गए, बंगाल में चुनाव हुआ तो आप ममता बनर्जी के पॉलिटिकल एडवाइजर उनके दफ्तर में रेड मारने चले गए। ये कैसा संयोग है। ये संयोग नहीं है, ये आप पॉलिटिकल पार्टी के पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब क्यों छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे, अब छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्यों छत्तीसगढ़ में अब सब ईमानदार हो गए। तो ये एक बड़ा सवाल, राजस्थान क्यों नहीं जा रही है वो, अब वो मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा रही है। कहीं आपने सुना कभी कि बीजेपी के किसी शासित प्रदेश में ईडी की कार्रवाई हुई हो। तो बीजेपी शासित प्रदेशों के जो लोग हैं, नेता हैं, अफसर हैं, वो राजा हरिश्चंद्र है, सब दूध के धुले हुए। वहां कोई करप्शन नहीं, कोई बेईमानी नहीं है, सिर्फ विपक्षी शासित प्रदेशों में ही है। और एक आखिरी बात, ये जो डमरू वाला आप तस्वीर दिखा रहे थे पतंगबाजी की, जरा रिसर्च करें कोई राजीव जी। 2014 से पहले अक्सर हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी तपस्या में लीन हैं, किसी गुफा में बैठे हुए,
कभी वो डमरू बजा रहे हैं, कभी किसी मंदिर में चोला पहने हुए हैं, कभी वो राम मंदिर की पूजा पाठ में बैठे हुए हैं। 2014 से पहले कोई तस्वीर नरेंद्र मोदी की किसी मंदिर में जाते हुए, कोई ऐसे डमरू बजाते हुए मंदिर में जाते हुए है? कोई हो तो दिखाएं। नहीं जाते थे वो। तो ये राजनीति है। 2014 के बाद वो धार्मिक हो गए। 2014 से पहले उनको हिंदू धर्म नहीं याद आता था, मंदिर नहीं याद आते थे। तब न सोमनाथ का मंदिर याद आता था, न उनको राम मंदिर याद आता था। याद कीजिए कि 2014 के इलेक्शन कैंपेन में वो अयोध्या भी नहीं गए थे, 2019 में भी नहीं गए थे अयोध्या। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ईडी की बात हो रही है। हमारे साथ अमलेंदु जी भी जुड़ गए। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। और सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। कैसे अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है और चुनाव आयोग को लेकर, एक एसआईआर को लेकर सुनवाई तो चल ही रही है और अलग अलग राज्यों, पहले बिहार, उसके बाद फिर 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, उस पर भी चुनाव आयोग घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है और हालांकि जिस ढंग से सुनवाई होनी चाहिए उस ढंग से अभी भी नहीं हो रही सुनवाई, उसमें समय का अभाव रहता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इन सब के बीच एक और याचिका आ गई। उस याचिका का जिक्र आपके सामने ऑलरेडी हो चुका है और हमारे दो साथी उस पर अपनी बात रख चुके हैं। आपसे भी समझना चाहूँगा कि क्या अब लोक प्रहरी जो याचिका करता है, एनजीओ है, और जिसने साफ साफ एक चुनौती पेश की है कि ये जो इनको जो आपने संरक्षण दिया है कि ये आजीवन का इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, कार्रवाई नहीं हो सकती, और इस पर अब नोटिस जारी करना, इसको कैसे देखा जाए? और इससे पहले इसी नियम 2023 जो है उस नियम के आधार पे एक याचिका और लगी हुई है जिसमें इन तीनों के और खासकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित याचिका भी है। इसके अलावा ईवीएम से रिलेटेड याचिका, चुनाव सुधार से रिलेटेड याचिका, ढेर सारी याचिकाएं, चारों तरफ से देखिए ढेर सारी याचिकाएं हैं और सब पे कुछ पे वर्डिक्ट, कुछ पे नहीं, कुछ पे अभी आगे बात करेंगे। और इन सब के बीच चुनाव हम देख रहे हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है चुनाव भी हो रहे हैं। एक विश्वास का अभाव धीरे धीरे नजर आ रहा है सुनील जी, और लोकतंत्र में अगर इस विश्वास का अभाव हो जाए तो फिर देश किस दिशा में जाएगा? क्या वही सब पतंग उड़ाने में मशगूल हो जाएंगे? क्या सब डमरू बजाने में मशगूल हो जाएंगे या कुछ और करेंगे? जी, अगर आप प्रधानमंत्री को पतंग उड़ाते हुए देखना चाहते हैं तो पतंग उड़ाएंगे। अगर आप उनको मंदिरों में जाते हुए देखना चाहते हैं, त्रिशूल लेकर घूमना देखना चाहते हैं, डमरू बजाते हुए देखना चाहते हैं तो डमरू बजाएंगे। 2014 के पहले वो नहीं कर रहे थे। 2014 के पहले वो वाइब्रेंट गुजरात कर रहे थे। 2014 के लोकसभा के चुनाव के भाषणों को यहाँ पे याद कर लीजिए, वो विकास की बात कर रहे थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, डमरू नहीं बजा रहे थे। उन्होंने किसी भी धार्मिक आयोजन, और जो ये राम मंदिर का आंदोलन चला, जहां तक मेरी स्मृतियों में है, मैं बहुत ही निकटता से इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहा था, मुझे कभी नरेंद्र मोदी जी का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा कि किसी बैठक में, किसी आंदोलन में, किसी धरने में, किसी अयोध्या पहुंचने की कोशिशों में हमने कभी उनका नाम नहीं सुना। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जो लोग अयोध्या पहुंचे, आज उनका अता पता कहीं नहीं है। उमा भारती जी पहुंचने वालों में से थी, पुलिस ने उनको वहां गिरफ्तार किया था, मेरे सामने भी गिरफ्तार हुई थी। ये हरीन भाई पाठक एक सांसद होते थे अहमदाबाद के, वो पहुंचने वालों में थे, वो पता नहीं कहाँ है आज, उनको साथ टिकट भी नहीं मिला 2019 के चुनाव में। जो लोग गए, आज अशोक सिंघल साहब पहुंचने वालों में थे, आज दुखद है कि उनका देहांत हो चुका है। बस जितने बड़े नाम आप लीजिए, विनय कटियार का नाम आप याद कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का नाम मैंने कभी नहीं सुना। आप में से किसी ने सुना हो तो मैं नहीं कर सकता। मैं पूरे आंदोलन को बहुत निकटता से देख रहा था। मैं कई बार उस दौरान फैजाबाद भी गया, उस समय का फैजाबाद आज का अयोध्या, और अयोध्या था उस समय जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, सड़कों पर चलना बड़ा मुश्किल था। तभी मैं गया था, मैं एक न्यूज़पेपर में काम करता था।
तब भी नहीं थे मोदी जी, कभी नहीं दिखाई पड़े। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता भाई अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिरने पर उसको काला दिवस की बात कही थी। हर व्यक्ति ने, जो आज लोग कहते हैं जिनके ऊपर आरोप लगे थे, सबने अपने आप को कहा कि नहीं नहीं हम उस घटना में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो उत्तेजित कार सेवकों का परिणाम रहा, कभी नहीं रहा। लेकिन अब क्या है कि आपके पास, अगर आप सरकार में होते हैं तो सरकार में होने पर आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है। हमने आवाम के लिए किया, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए यह किया, देश के तरक्की के लिए ये काम किए गए। आपके पास क्या है, आप क्या बताएंगे? देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, रुपए का बुरी तरह से अवमूल्यन हुआ है। 91 मैंने आज अखबार में मैं पढ़ा कि 2 पैसे रुपए की कीमत में सुधार हुआ है अब डॉलर की तुलना में, 2 पैसा, और ये अखबार में खबर है। आपके अर्थव्यवस्था ये पहुंच गई। आयात निर्यात आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में ट्रंप साहब 65 बार से कह चुके हैं कि वह भारत और पाकिस्तान के मामले में उन्होंने हस्तक्षेप किया था, हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी हमारी कोई टिप्पणी नहीं आती। अगर ये स्थिति आपके पास है तो डमरू नहीं बजाएंगे तो और क्या करेंगे? कौन सा विकल्प आपके पास है? किस बिना पर अपना सिरा ठोकेंगे कि साहब मैंने ये कर दिया, ये हमारी सरकार ने ये किया? भाई अगर आप यूपीए सरकार की तमाम आलोचनाएं कीजिए, सरकारों की आलोचनाएं होनी भी चाहिए, लेकिन उस सरकार के पास वो था कि उसने आरटीआई दिया, उसने मनरेगा दिया, अपने काम का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। आप कर सकते हैं। तमाम जो आर्थिक उदारीकरण के बाद से ढेर सारे ऐसे कदम उठाए गए जिससे भारत की तरक्की हुई, शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे काम किए गए, तमाम चीजें हैं। और वो जो जब 2010-14 का चुनाव हो रहा था तो सरकारें कह भी रही थी कि हमने ये किया, हमको ये करना है। लेकिन अब आपके पास, सरकार के पास है कि अब उनको ये लगने लगा कि मंदिर में डमरू बजा के और अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण करके आप अपने लोगों को प्रभावित करते रहेंगे। तो वो ये काम कर रहे हैं। उनके अपने लोग जो उस सरकार के समर्थक हैं या मोदी जी के प्रशंसक हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाह रहे हैं कि देश तरक्की करे, एक वैज्ञानिक सोच देश में डेवलप हो। शिक्षा की स्थिति क्या होगी? आज मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में भी भारत का नाम कहीं नहीं है। शिक्षण संस्थाओं की स्थिति आपने क्या कर दी? आपको लगता है कि हनुमान जी और गणेश जी ये सबसे परे लोग थे जो अंतरिक्ष में गए, और चाहे विज्ञान और मेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। आप मैथोलॉजिकल जो आप हमारे पात्र हैं उनके माध्यम से आप अपनी बात कहना चाहते हैं, क्या होगा? तो डमरू ही बजेगा। डमरू बजेगा, जिसको अच्छा लग रहा है सुनेगा, और बाकी जिनको लगेगा तो कर्कश आवाज लगेगी कि आखिर हम कहाँ पहुंच गए हैं, जी कहाँ जाएंगे, देश कहाँ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो मेरा अपना मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश मामले अपनी पहली सुनवाई में ही रद्द हो जाते हैं। पहली सुनवाई में, पहली 2 मिनट की सुनवाई हुई, न्यायालय निर्णय कर देता है, वो खारिज किया, घटिया यहां से अब सुनने लायक नहीं। लेकिन अगर वो सुनवाई के लिए तैयार हो जाए और नोटिस जारी कर दे तो मेरी अपनी समझ है कि यह उत्साहवर्धक की स्थिति है, यह स्वागत योग्य कदम। यह सामान्य बात नहीं होती। अगर 100 मुकदमे में, मतलब अगर 100 मुकदमे दाखिल होते हैं तो मेरी अपनी समझ है कि 95 मुकदमे एकदम पहले इनिशियल स्टेज पे ही खारिज हो जाते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की सुनवाई के लिए है, सामान्य बातों में सुनवाई नहीं करता। ऐसे में इस कानून को लेकर के जो निर्वाचन आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई है अपनी नौकरी के दौरान भी, उसके बाद भी, उस पर नोटिस जारी करना मैं मानता हूं कि यह स्वागत योग्य है और ये उत्साहवर्धक भी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि इतनी इम्यूनिटी तो किसी को नहीं मिली है देश में, इनको क्या जरूरत है। और सुनवाई के समय में निर्वाचन आयोग या सरकार की ओर से भी कोई ऐसे बहुत मजबूत तर्क नहीं दिए जा सके। एक सामान्य कानून के जानकार होने या सामान्य विद्यार्थी होने के होते हुए भी आप इस इम्यूनिटी का कोई तर्क नहीं बता सकते, क्यों इस तरह की इम्यूनिटी दी जाए और किसी को क्यों दी जाए। कोई भी व्यक्ति आलोचना से परे कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति अपने कामों के लिए अकाउंटेबल क्यों नहीं हो सकता? क्यों उसको हर चीज से मुक्त कर दिया जाए?
और ऐसी व्यवस्था से क्यों नहीं यह संदेश जाएगा कि सरकार निर्वाचन आयोग को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है अपने राजनीतिक हितों के लिए। और यह धारणा इसलिए भी बनती है कि जिस तरह का कॉलेजियम आपने बनाया निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का कॉलेजियम जिस तरीके से बनाया गया सब पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में, उसके बाद उनके कामकाज को लेकर के उनको पूरी तरह से अधिकार संपन्न बना देने की कोशिश, यह संदेह पैदा करता है। और अगर इन सभी चीजों से सर्वोच्च न्यायालय आंख मूंद ले, बात दिगर है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी कानून का जानकार इससे आंख नहीं बंद कर सकता। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कोलिजियम सरकार बनाने का अधिकार सरकार को है और सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। जिन लोगों को उसने रखा, ये एक एकेडमिक बहस हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को आपने कोलिजियम में रखा और जो अपेक्षा की जाती है निर्वाचन आयोग को लेकर के वो पारदर्शी होगा, वह सरकार के नियंत्रण से मुक्त होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था और चंद्रचूड़ साहब ने मुख्य न्यायाधीश को आदेश दिया था, उसमें कहा गया था कि एक ऐसा, और हमारे संविधान की मंशा भी यही है कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सरकार से मुक्त हो, सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो, एक ऐसा निर्वाचन आयोग हो जो सरकार के खिलाफ भी एक स्टैंड ले सके। ये मंशा रही है। उस मंशा से तो अभी तक अलग नहीं हुआ गया ना, सर्वोच्च न्यायालय भी उससे अलग नहीं हुआ है। ठीक है, तब ये इसलिए मेरा मानना है कि ये नोटिस जारी किया जाना एक सुखद संकेत है और मुझे लगता है कि इसके बेहतर परिणाम आने चाहिए। ये जरूर है कि सर्वोच्च न्यायालय से ये जो कार्रवाई हो रही है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक गतिविधियों या गवर्नेंस के नाते वह अपनी राजनीति को नहीं बढ़ाना चाहती, सरकार के मुद्दे बढ़ाना चाहती। सरकार के नियंत्रण में चीजें रहे, सरकार के नियंत्रण में संवैधानिक संस्थाएं रहे और उसके राजनीतिक लाभ सहते रहे। वो मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर तक ये जाएगा। दूसरी चीज है कि जो डमरू बजाने वाली बात है, फिर अंतिम बात कर लूं मैं, कि डमरू बजाने के नाम पर अपनी सरकार को बचाए रखने या अपनी राजनीतिक लोकप्रियता को बचाए रखने की जो कोशिश है, मुझे लगता है कि बहुत ही बेमानी है। और दुनिया के विभिन्न देशों में धार्मिक आधारों पर जन समर्थन हासिल करने की कोशिशें और हासिल किए गए जन समर्थन को बनाए रखने का प्रयास जिस तरीके से विफल होता चला जा रहा है, इस बात का संकेत है कि आप बहुत दिनों तक डमरू बजा करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। सरकार की जो जवाबदेही है उस पर लोग आपसे सवाल पूछेंगे। ये पूछेंगे कि आपने पिछले 1 दशक में देश को दिया क्या। ये जानना चाहेंगे कि आपने जो आश्वासन दिए थे देश को, जो सपने आपने दिखाए थे, वो सपने कहां तक पूरे हुए। क्या उन सपनों को पूरा करने के लिए केवल डमरू की आवाज पर निर्भर रहा जाए, या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। डमरू की बात हम देख ही रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज याचिका न सिर्फ स्वीकार कर ली गई बल्कि नोटिस भी जारी किया गया है। इसको कैसे देखते हैं अमलेंदु जी? कितना उत्साहवर्धक है नोटिस जारी होना, और सबसे बड़ी चीज़ कि कम से कम इस पर चर्चा तो हो रही है। राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रियों को, किसी को इतनी इम्यूनिटी नहीं है। आप उस पद से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आपका कार्यकाल खत्म होता है, उस कुर्सी से आप नीचे उतरते हैं, वैसे ही आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, एक्शन हो सकता है। लेकिन इनको तो बिल्कुल प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है कि अपने लिए आपने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, और यह सवाल आज पूछा भी गया और इसलिए नोटिस जारी किया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, इसमें सिर्फ नोटिस ही इशू नहीं हुआ है, बल्कि सीजीआई ने पूछा भी कि भाई इनको ही ये इम्यूनिटी क्यों है, जबकि ये राष्ट्रपति को भी नहीं है, किसी और को भी इम्यूनिटी इसमें हासिल नहीं है, तो इनको ही क्यों, वो भी नौकरी के बाद भी आपको इम्यूनिटी हासिल है। आखिर ऐसा क्या है जो आपको इम्यूनिटी दी जाए? संविधान में किसी को इस तरीके की इम्यूनिटी हासिल नहीं है, तो इसलिए हम इसकी जांच करना चाहेंगे। ये कहा उन्होंने कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे, और जांच करना चाहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने फिर इसके ऊपर नोटिस इशू कर दिया चुनाव आयोग और सरकार दोनों को। अब राजीव जी इतना ही नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता जो है उनकी जो दलील है, वो दलील ये है कि संसद को इस तरीके की इम्यूनिटी देने का अधिकार भी नहीं है। संसद किसी को भी इस तरीके की इम्यूनिटी नहीं दे सकती। संसद ने अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया है।
राजीव जी, संविधान में सारे दायरे बंधे हुए हैं हर संवैधानिक संस्था के कि कितना वो आगे बढ़कर जा सकती है। और जिस समय ये इम्यूनिटी दी गई, ये कानून पास हुआ राजीव जी, आपको याद होगा कि उस समय पूरा विपक्ष जो था वो बाहर कर दिया गया था, हाँ तब जाके ये पास हुआ था। जी। तो पूरा विपक्ष जब बाहर कर दिया गया, तो आप कल को पूरा विपक्ष बाहर करके आप ये भी प्रस्ताव पारित कर देंगे कि अब भारत में कभी चुनाव नहीं होगा, चूंकि आप सरकार में बैठे हुए हैं, संसद में आपने विपक्ष बाहर कर दिया और आपने प्रस्ताव पारित कर दिया, अब चुनाव नहीं होगा। तो क्या वो मान लिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट तब भी खामोश बैठा रहेगा और कह देगा कि संसद ने पास कर दिया कि अब चुनाव नहीं होगा, तो चुनाव नहीं होंगे? तो ये राजीव जी, देश को जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, उस पर थोड़े सा जो है सुप्रीम कोर्ट चौकन्ना हुआ है कि भाई इस तरीके की चीजें कैसे हो सकती हैं। मुझको लगता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई ज्यादा राजीव जी भरोसा करने की मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। हम लोग देख रहे हैं कि SIR पर 6 महीना हो गया, बहस चली रही है। अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि भाई SIR कराने का अधिकार जो है चुनाव आयोग को है भी कि नहीं है संवैधानिक तौर पर, और संविधान का उल्लंघन चुनाव आयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही अभी तक तय नहीं हो पाया। और SIR कराकर बिहार में चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई। तो ये जब तक आएगा फैसला, तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखा जाएगा उस समय। खैर, तो ये राजीव जी एक गंभीर चिंता का विषय जो है मुझको लगता है कि ये है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर थोड़ा सा चिंतित हुआ है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस तरह की इम्यूनिटी नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, किसी और को नहीं है इस तरह की इम्यूनिटी, तो ये चुनाव आयुक्त को आखिर क्यों दे दी गई, और ये ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इतनी इम्यूनिटी की इसकी इस तरीके की आवश्यकता है? आपका काम स्वतंत्र और पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव करवाना है, तो स्वतंत्र पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव करवाने में आपको खतरे ऐसे क्या आते हैं कि आप कोई गड़बड़ झाला कर देंगे तो आपको इम्यूनिटी चाहिए उसके लिए? भाई स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कोई गड़बड़ झाला करने की आवश्यकता तो है नहीं। जो आपको कोई डर हो, डर तो उस जगह होता है कि भाई आपको कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो कुछ अप्रिय हो किसी को लगे, तो वो स्थितियां तो है नहीं। निष्पक्ष स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव होगा तो उस पर कौन आपत्ति कर सकता है? तो इसलिए ये संदेह जो है वो खड़ा होता है, और विपक्ष यही बात कह रहा है कि भाई ये इनको इम्यूनिटी इसलिए दी गई। और आपने शुरू में जो सुनवाया राहुल गांधी का संसद में दिया गया भाषण राजीव जी, आज वो भाषण एक तरीके से उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य हो रहा है ये टिप्पणी करने के लिए कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे। अब वो जांच करेंगे, क्या करेंगे, वो अलग का मसला है। जांच होगी, क्या होगी, सरकार अपना क्या पक्ष रखती है कि संसद से पास कर दिया गया है। और आपको राजीव जी याद होगा कि जस्टिस रमन्ना जिस समय CJI थे, उन्होंने एक बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि संसद में 2-2 मिनट की बहस में ही जो है वो विधेयक पास हो जा रहा है, और अगर चर्चा नहीं होगी और बिना चर्चा के पास होंगे तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। तो राजीव जी, जब विपक्ष को आप बाहर कर देंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी और आधी रात में आप इस तरीके से बिल पास करा लेंगे, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सवाल उठेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सवाल उठाए। अब मोदी जी, राजीव जी जो लेकर घूम रहे हैं डमरू, तो हम लोगों के बचपन में राजीव जी, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि गली मोहल्ले में आते थे, वो मदारी आया करते थे, भालू नचाते हुए, बंदर नचाते हुए, वो इसी तरीके से डमरू बजाते हुए आते थे, और फिर बजाते बजाते बताते थे कि बहुत कुछ निकालने वाले हैं पिटारे से, और क्या सांप कांटे की दवा देंगे, इस तरह की बातें सब करते थे, और आखिर में 10-10 रुपया जेब से झाड़ के गायब हो जाते थे। तो राजीव जी, डमरू वाले बाबा देखकर तो यही लगने लगा कि डमरू वाले बाबा जो है क्या सबकी जेब से पैसा निकलवाकर इसी तरीके से गायब हो जाएंगे? क्योंकि अगर डमरू बजाने की राजीव जी नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि झोली जो है वो कंगाल हो चुकी है, और झोला उठाने का समय आ गया। ये संकेत दे दिया गया है कि अब मैं डमरू बजा के और झोला उठा के निकलने वाला हूँ। देशवासियों, तुम्हें जो देखना हो वो देखो। तो क्या ये संकेत देने की कोशिश हो रही है राजीव जी? ट्रंप वैसे ही बहुत सारी गड़बड़ सड़बड़ बातें कह रहे हैं। आज फिर उन्होंने कह दिया कि अब तो मित्र हैं मोदी जी, बहुत अच्छे मित्र हैं, और 70 बार कह चुके कि मैंने जो थी जंग रुकवाई। तो अब ये क्या मसला है राजीव जी, ये डमरू का है और ट्रंप से क्या मामला है, अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है, ये तो मोदी जी बेहतर जाने। लेकिन उनका डमरू बजाने का स्टाइल जो है वो निश्चित तौर पर बता रहा है कि अर्थव्यवस्था खतरे में और झोला उठाने का समय आ गया है। बाकी राजीव जी, राम मंदिर आंदोलन के दौरान मोदी जी जो थे वो केवल अडवाणी जी के सारथी बने थे, उनका जो ट्रक था वो चला रहे थे। इसके अलावा उनका हमने तो नहीं सुना कि किसी आंदोलन में रहे हों। और 2014 का चुनाव जीते थे तब भी जय श्री राम नहीं बोला था, 19 का चुनाव जीते थे तब भी जय श्री राम नहीं बोला था, और 24 में जब बने प्रधानमंत्री तब भी जय श्री राम नहीं बोला है। तीनों बार जय श्री राम नहीं बोला है। और जब वो राम मंदिर की बात आ रही थी राजीव जी, जिस समय उसका उद्घाटन होना था, उस समय भी जय श्री राम नहीं निकला था उनके मुख से। तो जय श्री राम मोदी जी मुख से नहीं निकल रहा है। बजरंगी भाई जो है वो लगा पड़े हैं जय श्री राम, और हिंसक हुए जा रहे हैं जय श्री राम कह कह के।
मोदी जी लग जय श्री राम कहना भूल चुके हैं राजीव जी। चलिए, मोदी जी जो भी करें, डमरू बजा रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए आप अपने मनपसंद काम आप करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और देश की जनता, मुझे तो डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आता है कि कल भी शायद मैं कह रहा था कि आप भूखे मरिए, आप ठंड में कांपते रहिए, आप हॉस्पिटल जाइए तो आपके इलाज के लिए आपके पास जेब में पैसा नहीं, महंगाई दर बढ़ गई है, सरकार ने माना है, आप लोगों को ये खबर मिल गई होगी, सरकार ने माना है आज ही कि महंगाई दर बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, सरकार ये मान रही है कि हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ गई। ये हो जाए, उसके बाद कहीं 2 साल 3 साल पुराने एग्ज़ाम दिए हुए अब लोग इंतज़ार करते हैं कि आज और कल में नियुक्ति पत्र आने वाला होगा, तब तक वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। फिर उसके बाद आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर जैसी पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे शिक्षक होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, वो ना हो। मतलब हर तरफ से बेसिक नीड्स जो आपके हैं, जिसमें शिक्षा है, रोजगार है, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें आपके सिर पे छत है कि नहीं वो है, किसानों की आय दोगुनी 2022 में होने वाली थी वो बात है, इन सब की कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया है, वो अब डमरू बजाएं या झुनझुना बजाएं, पतंग उड़ाएं या कुछ और करें। इसरो ने आज प्रक्षेपण किया और वो फेल हो गया, आप लोगों को ये खबर भी मिल गई होगी। एक साथ 14 सैटेलाइट्स करने वाले थे लेकिन फेल हो गए। कितने करोड़, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इन सब की कोई चिंता नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी डमरू बजा रहे हैं और हम देखकर प्रसन्न हैं। मुझे ये इस बात की मतलब कई बार मैं सोचता हूँ बैठ के आराम से स्थिर होकर डॉक्टर साहब कि आखिर हमारे देश की आवाम को हो क्या गया है। किसी तरह का कोई, इससे अच्छा तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और हमारे पड़ोसी हैं जहाँ की जनता कम से कम जागकर अपनी बात, अपनी डिमांड रखती है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई डिमांड लेके आता है तो उसको आप 4 बातें सुनाने लगते हैं। खैर, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा था, जो देखकर बड़ी मतलब चिंता होती है कि हमारा देश किस दिशा में जा चुका है, कितनी अंधभक्ति में चूर हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जरा ईडी के मसले पे आऊंगा, और इससे पहले जब हम ये बात कर रहे थे तो इसमें एक हवाला दिया गया है 1951 का एक केस, उसके जजमेंट का हवाला दिया गया है इस मसले पे। जो लोक प्रहरी ने जो याचिका लगाई है उसमें 1951 एस कृष्णन वर्सेस मद्रास राज्य 1951, और उसका हवाला देते हुए कि यहां साफ साफ जिसके बारे में अभी सुनील शुक्ला जी भी कह रहे थे उसका हवाला बस जानकारी के लिए। और हां, सीजेआई ने कहा कि इतना ज्यादा इम्यूनिटी, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों, यह सवाल पूछा गया है, सवाल उठाया गया, इसलिए नोटिस भी दिया गया है। तो एक उम्मीद जगती है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी जो गिड़गिड़ा रहा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, ममता बनर्जी हमको वहां टिकने नहीं देंगी, चूंकि होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है तो वहां का डीजीपी, वहां के एसपी, वहां के आयुक्त, जितने जो भी है, पुलिस का पूरा महकमा उनके साथ है, हम उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते हैं, इसलिए हमको, यानी अब ईडी भी प्रोटेक्शन के लिए गई है। सीधे माना जाए ये प्रोटेक्शन है। इसको कैसे देखा जाए? जांच एजेंसी क्या यहां पर एक्सपोज नहीं होती हुई दिखाई दे रही है? पहला ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री ने सीधे दबोच लिया है, यह ना माना जाए। फैसला क्या आएगा इस पर अभी पता नहीं, मैं ये आखिरी लाइन जोड़ रहा हूं, फैसला क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट से, क्या निर्देश आता है, डोंट नो। लेकिन आज की तारीख में जांच एजेंसी गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है, और 14 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है। उधर हमारे साथियों की बातों में 1-2 बातें जोड़ देता हूं। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, हम लोग भी पहले उठाते ही रहे सब लोग, कि ईवीएम गलती से भी कभी दूसरे के चुनाव चिन्ह पर क्यों नहीं रजिस्टर होती। जब भी गलती होती है
इसका प्रशांत जी एक बहुत शानदार नजारा देखने को मिला था मध्य प्रदेश में भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र में। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जो पर्यवेक्षक मोहतरमा आई हुई थी, उन्होंने अपने सामने डेमो कराया पर बाकायदा वो वोट बीजेपी के नाम गया। तो ये गलती सचमुच मशीन कैसे करती है, ये भी अपने आप में रहस्य है। दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी की तस्वीरों की बात हो रही थी धार्मिक आयोजनों में, अयोध्या के आंदोलन में, तो एक तो वे पहले जब 34 साल या 35 साल भिक्षाटन कर रहे थे तब उनके पास इतना समय नहीं था, क्योंकि उस समय उन्हें हॉलीवुड के दरवाजे पर फोटो खिंचवानी थी, व्हाइट हाउस की बैरिकेड को खड़े पकड़कर फोटो खिंचवानी थी, एफिल टावर के सामने खड़े होना था। राम मंदिर आंदोलन में सुनील जी ने कहा है, पूछा है, तो एक तस्वीर आपको याद दिला देते हैं सर। जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे, तब उस रथ यात्रा में उनके सारथी जैसी भूमिका में, एक सहायक की भूमिका में नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक दिखाई देती, पीछे की तरफ खड़े थे। इसके अलावा वे कभी इस आंदोलन में नहीं दिखाई दिए। कभी केदारनाथ में तपस्या करते हुए उनकी कोई फोटो नहीं है। किसी मंदिर में डमरू बजाते हुए, त्रिशूल लेकर हाथ में, या ध्वजारोहण करते हुए कभी नहीं देखे गए। मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि वे अब हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष बनना चाहते हैं। मैंने अभी 20 दिसंबर को दिल्ली में ही एक किताब के विमोचन में कहा था कि नरेंद्र मोदी अब राजनीतिक सत्ता के साथ साथ देश की धार्मिक सत्ता के भी अधिपति बनना चाहते हैं। ये सारी गतिविधियां उसी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कई ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य भी इसमें देखने को मिले हैं। तो जो गाड़ी है जिसमें वे ऊपर खड़े होकर रोड शो में चल रहे हैं, जिस एंगल से वो फोटो खींची है, 5 तस्वीरें तो उसी एंगल से दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट साइड में भी कुछ तस्वीरें लगी होंगी, यानी जिस गाड़ी पर वे खुद खड़े हैं उसी में उनकी इतनी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। मानो वो फोटो नहीं लगी हो तो शायद कोई पहचान नहीं पाएगा,